Manish Pariyar ji, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने according to IP Singh, it's not about whether the building is under construction or not. It's a conspiracy. बेचना चाहते हैं. That's the allegation Samajwadi Party is leveling. Or is this just politics? What do you think? Yeah, good evening to you. I think on this matter, at least as far as Samajwadi Party is concerned, they should not talk about Samajwad anymore. As we all know that, they have been pretty good friends with Congress, and Jaiprakash Narayan was a known anti-Congress person later on, and the entire Sampurna Kranti happened from there. So they're talking about democracy, and we also know how the party, fired on Ram Sevaks. So there is a long history of anti-democratic behavior from Samajwadi Party. So for them to lecture on this is something which is very, very ludicrous. But having said that, I think Bharatiya Janata Party has also not really glorified themselves on this issue. There are two aspects I would like to mention. One was that they had a very good victory in Haryana. The entire talk was about Haryana, and there's so much talk on BJP's victory. The momentum was with them. I felt that this incident unnecessarily has attracted, was caught the attention of the countrymen towards Akhilesh Yadav. And that's something which is not that great for BJP, because ideally they should have really, ensured that the momentum should have remained on BJP. Okay, I want to take a quick rebuttal. First from IP Singh. IP Singh जी, मनीष बरियार कह रहे हैं कि आइडियल्स कब फॉलो किया आपने, जो टीचिंग्स थी जेपी नारायण की कब आपने फॉलो की? आप तो कांग्रेस के साथ अलायंस करके बैठे हैं और जेपी नारायण डायनेस्टी के खिलाफ बोलते थे. सवाल ये है कि जिस आपातकाल की बात होती है उससे भयंकर आपातकाल आज है, अघोषित आपातकाल है. आप रैली नहीं कर सकते, आप पोस्टर नहीं लगा सकते, स्लोगन नहीं लगा सकते, आप घर से नहीं निकल सकते, नहीं, आप उसी जेपी मूवमेंट नहीं, उसी जेपी मूवमेंट का क्योंकि आप जिक्र करेंगे, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, और मनीष बरियार भी इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि जेपी नारायण के दिखाए हुए रास्ते पर और सिखाए हुए रास्ते पर समाजवादी पार्टी कहां चल रही है आज? आंदोलन से निकले हुए नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो समर्थन दिया है वो समर्थन वापस ले. तो आप भी तो अलायंस में हैं कांग्रेस के साथ, से मोदी सरकार चल रही तो है. आप भी तो अलायंस में हैं कांग्रेस के साथ. अगर जेपी नारायण जी का आईपी सिंह जी, ये एक तरफा आप हमेशा एक तरफा बहस करना चाहते हैं, एक तरफा बहस करना चाहते हैं. वो कह रहे हैं कि आप भी तो अलायंस में हैं कांग्रेस के, और जेपी नारायण कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे. जयप्रकाश नारायण से दूर का समाजवादियों का अभी कोई रिश्ता नहीं है. देखिए, अगर वो जाइए तो जयप्रकाश नारायण जी गांधी जी के अनुयायी थे, कांग्रेस गांधी जी के साथ थी, उस दौर में मत जाइए. तो आपकी तो पार्टी जो है. I know Anila Singh wants to come in, but quick word from Dr. Shujat Ali. Dr. Shujat Ali, what's happening? Is this just politics for the sake of it? Just, on the eve of the birth anniversary of JP Narayan, Akhilesh Yadav goes there and says that I was not allowed, the permission was denied, citing security concerns, that there could be some security concerns given the construction that is happening, and that has been turned into this big issue where Akhilesh Yadav is saying we are being stopped. हमें रोका जा रहा है. How do you respond, Dr. Ali? देखिए, फूल अगर पहनाए जाते हैं तो इसमें सिक्योरिटी कंसर्न क्या हो सकता है? 15-20 मिनट के लिए वो शीट हटा करके उनको जाने दिया, और उसमें कोई हादसा हो जाए तो, और उस प्रांगण में आप जा रहे हैं जहां की अंडर कंस्ट्रक्शन में कोई हादसा हो जाए तो? हादसा कैसे हो सकता है, मुझे बताइए. आज मिनिस्टरों को 15-15, 20-20 जो है सिक्योरिटी गार्ड देते हैं, उनकी हिफाजत होती है, कोई नुकसान उनको नहीं होता. तो ये जो बिल्डिंग है इसको क्या नुकसान हो सकता था, बताइए मुझे. कोई नुकसान नहीं हो सकता था. ये जो है बहुत बड़ी गंदगी है यूपी सरकार की, ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए था. और अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल जायज प्रोटेस्ट है. सिक्योरिटी के नाम पर आप किसी फार्मर चीफ मिनिस्टर को फूल पहनाने के लिए रोक देते हैं, तो आप कितने कमजोर और कितने निकम्मे हैं कि आप. अनिला सिंह, कमजोर है आपकी सरकार, ये आपकी कमजोरी है. आप डर गए, आपकी कमजोरी, आप अखिलेश यादव से डर गए. प्लीज रिस्पॉन्ड. पहली बात तो ये है कि मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं बता दूं, 1999 में भारत रत्न जेपी जी को देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही थी.
हाँ, जब ये लोग सत्ता में रहे हैं तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि हम जेपी को भारत रत्न दें। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही उनको भारत रत्न दिया है। और दूसरी बात ये है कि समाजवादी पार्टी का दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है। अगर मैं जेपी नारायण जी की बात करूं, राम मनोहर लोहिया जी की बात करूं, उनकी आइडियोलॉजी की बात करूं, दूर दूर तक कोई यहाँ पे रिश्ता नहीं है रिश्ते इनका। नाते की बात नहीं तो है। यहाँ पर आप देख लीजिए, परिवारवाद जो है चरम सीमा पर चलता है। एक ही परिवार के जो है 2 दर्जन से ज्यादा जो पारिवारिक All right. members हैं, आपकी they are into पार्टी- politics All and they are right. holding very Okay, the powerful political position in blame is different currently campuses. underway. अनिला सिंह जी, मनीष बरियार एक नसीहत बीजेपी को भी दे रहे थे कि जेपी नारायण की लेगेसी को लेकर सभी पार्टियां जो हैं वो सिर्फ राजनीति कर रही हैं। आईपी सिंह एंड हिज पार्टी सेज वी वर ब्लॉक्ड, दिस इज पॉलिटिक्स। बीजेपी डर गई है। भारतीय जनता पार्टी से इज साइटिंग द सिक्योरिटी कंसर्न्स। थैंक यू वेरी मच अनिला सिंह एंड जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस।